Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to continue with the 8th chapter of your geography portion, that is human resources. In our last few classes, that is in our last 4 classes regarding this chapter, we have already studied that what we mean by the human resources and how it is important for the development of the economy. Then after that we had studied about the population distribution, that is how the population is being distributed in the entire world depending upon the climatic conditions, soil and the development of agricultural activity. So in that we had studied about the area of high density where the condition is favorable and thus the population is also high in those areas. Then next one was your area of moderate density, that is even though the conditions were not so very favorable, yet the living activity, or you can say the condition is made congenial for living through the usage of your technology. Then comes your area of low density, that is those areas where the density is very low, where the population is very low because of the climatic conditions, severe climatic condition, and even though with the usage of the technology also much of the effect will not be seen, and thus people don't prefer staying in those areas. Then comes your factor influencing the distribution of the population, in which the first one is a relief, that is the most important factor affecting the distribution of the population. Then comes the fertility of the soil, which is another important factor, as it supports the agricultural activity, and thus people settle down in those areas where the soil is much more fertile. Then comes your climate again, severe climatic conditions will not going to support the life at those places, and thus the climatic conditions which are moderate, the population will going to be high in those areas. Then comes your availability of the resources. Availability of the resources, you can say means of communication, means of transportation, proper living conditions, that is your proper sanitation, good buildings, roads, then proper healthcare facilities. These all are the available resources which initiate the growth of the population or the density of the population to settle down at any place. Then comes your population change, that how the change in the population took place in the entire world from your 16th century up till the 20th century. In this we had studied about that what do we mean by birth rate, then also the death rate, growth rate, immigration, emigration, these all we have studied. Then comes your growth of population, that how the population grew in the entire world in your last few centuries, like from the 19th to 20th centuries, what were the favorable conditions that allowed the development of that allowed the growth of the population. Then this growth of the population, how the pattern changed, that is the initially it was the pattern was of the people, that there were high death rates and low birth rates, but with the increase in the better healthcare facilities and increase in the technology, the birth rate got higher and the death rate got higher. But countries sooner realize that if they have to be a developed nation, in that case there should be lower birth rate and also lower death rate, and thus so that they can be called as a developed nation, as because when the population will be in control, the available resources can be utilized properly and can be distributed properly. In this we have studied about the census, that is the counting of the population and the collection of the relevant data. And after that, in that only we have studied about that what we mean by the life expectancy, that is a number of year a person is likely to live, which has gone from 23 years in 1901 to 63 years in 1999. Then after that we had studied the migration of the population, that how the migration it has affected the population of any place, that migration, which is the movement of the people in and out of an area, so how this movement of the people has affected the population of any country.
Then in today's class we will going to start with the new topic, that is your composition of population. Size of the population जो होती है, size मतलब उसके अंदर जो population की number है वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उसका कुछ लेना देना खास होता नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप बांग्लादेश एंड जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन दैट ऑफ बांग्लादेश. तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो आपके ह्यूमन हैं वो किसी भी इकोनॉमी में एज अ रिसोर्स कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं. जैसे अगर आप बांग्लादेश का ही एग्जांपल हो तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो अवेलेबल पॉपुलेशन है वो इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है. बट अगर आप जापान की बात करो तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो पा रही है. और इसी तरह से जो हमारे जो ह्यूमन हैं उनके अंदर वैल्यू ऐड होती है. अच्छा, ये जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी वेरी कर सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कैटेगराइज कर देती हैं और लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ये सारी चीज़ें लोगों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं. अगर आप पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को देखो तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बेसिकली आपका इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब आपकी जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है. इसके अंदर हम बात करते हैं फीमेल सेक्स रेशियो की, देन एज ग्रुप की, दैट इज़ योर एज कॉम्पोजिशन. फिर हम करते हैं हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज़, दैट इज़ द लिटरेसी रेट लेवल. फिर हम बात करते हैं कि किस तरह का ऑक्यूपेशन फॉलो किया जाता है उस पॉपुलेशन में, दैट इज़ योर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. फिर किस तरह से उनकी इनकम डिवाइडेड है, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में पढ़ते हैं. इस चीज़ को पढ़ने के लिए, दैट इज़ योर सेक्स रेशियो, एज कॉम्पोजिशन, लिटरेसी रेट लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर को हम जिससे हमें आसानी होती है इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने में, दैट इज़ योर पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड इट इज़ एन ईजी वे टू लुक एट द एज कॉम्पोजिशन, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है. जैसे आप इसमें देख सकते हो, आपका जो डायग्राम है वो शो कर रहा है, इट इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ वर्ल्ड इन 1950 to 2001. आपका जो सबसे नीचे वाला जो है बेस है, दैट इज़ योर 0 to 4. ये जो 0 to 4 है इट रिप्रेजेंट्स योर एज. ओके, और ये एज ऊपर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ईयर वाइज, वैसे वैसे ये एज 100 तक पहुंचती जाती है. आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है इट शोज़ इसके अंदर क्या है, जो बेसिक एसेंशियल चीज़ है वो क्या है आपकी, कि टोटल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, जैसे 5 to 9, देन 10 to 14. फिर जो नेक्स्ट है वो है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच दोज ग्रुप्स की. अगर जो नेक्स्ट आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो बेसिकली दिखाता है आपका कि टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है मेल्स एंड फीमेल्स का. फिर यही पॉपुलेशन पिरामिड आपको दिखाता है कि जो 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर कितने ज़्यादा मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं. इस तरह से ये पिरामिड बढ़ता जाता है. आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप है वो हमको बताता है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में, कि उस पर्टिकुलर एरिया में यूथ ज़्यादा है, ओल्ड लोग ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है, वो चीज़ें बताता है. कि अच्छा, इसमें जो आपका पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, इसके अंदर सबसे नीचे जो है वो 15 ईयर्स के बच्चे आपको रिफ्लेक्ट करते हैं. और 15 ईयर्स मतलब 0 से 15 ईयर्स मतलब जब से वो पैदा हो रहे हैं तब से 15 ईयर्स तक के बच्चों को उस कैटेगरी में लिया जाता है. और जैसे जैसे आपका पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ता है उसकी साइज़ एंड शेप दोनों ही बढ़ जाते हैं. और यहाँ पर जो एज भी है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती है और 65 ईयर्स तक की एज तक ले जाती है. फिर उसके बाद आपका
जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कंट्री में बर्थ एंड डेथ रेट्स को भी दिखाता है। और अगर किसी भी कंट्री में बर्थ एंड डेथ रेट्स हाई है तो इसका जो बेस होगा वो बहुत ब्रॉड होगा और बहुत तेज़ी से ये नैरो होकर के ऊपर की तरफ जाता है। इसमें इसका मतलब क्या है कि इवन दो बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज जो है वो जी पा रहे हैं और लार्जर परसेंटेज जो वो मर जा रहे हैं। दैट इज़ वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। देन जहाँ पर डेथ रेट्स, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर डेथ रेट्स आर जो डिक्रीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जो उनके इन्फेंट्स की जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पिरामिड होता है वो ब्रॉड होता है बीच में से, यानी कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन उस कंट्री में ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो इन्फेंट्स हैं वो सरवाइव करके एडल्टहुड की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। फिर इस तरह का पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलरली आपको देखने को मिलता है इंडिया में। फिर कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान है, तो जापान में क्या है कि लो बर्थ रेट्स हैं और यहाँ पर जो डेथ रेट्स है वो भी लो है। तो अच्छा, यहाँ पर जो लो बर्थ रेट्स होती है वो पिरामिड को नैरो बना देती है बेस से। जैसे कि आप ये वाला देखिए आप, दिस इज़ योर फिगर 8.5 विच यू कैन सी इज़ द पिरामिड पॉपुलेशन ऑफ योर जापान। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ वेरी नैरो कंपेयर टू योर इंडिया जो कि आपका 8.4 फिगर है। सो इट इज़ नैरोअर देन दैट ऑफ इंडिया, यानी कि हम इनके यहाँ पर जो इन्फेंट बर्थ है वो बहुत कम है। और आप बीच में देखो इनका जो आपके 60 to 64 का जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर आप ऊपर जाते हो तो इनकी डेथ रेट भी कम है, वो भी नैरो हो गई है। आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री, जैसे कि 65 ईयर्स के लोग कितने ज़्यादा हैं ये बताया जाता है और कितने ज़्यादा यंग डिपेंडेंट्स हैं जो कि 15 ईयर्स से बिलो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और एल्डरलीज कितने हैं मतलब कि 65 ईयर्स के ऊपर के लोग कितने हैं। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. For the rest of the chapter, we're going to meet up in our next class. Till then, take care. Have a great day ahead.